Alright. और क्योंकि अब हमने इस फिल्म की चर्चा करना शुरू कर ही दी है और हर फिल्म के लिए दुनिया के सामने आने से पहले, मीडिया के सामने आने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि उसका फर्स्ट लुक बहुत ही खूबसूरत हो। तो सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं आपके सामने पेश करना चाहूंगा द स्टनिंग, द एब्सोल्युटली मार्वेलस एंड डायनामिक मोशन पोस्टर्स ऑफ हो गया है मेरा दिल पतंगा। कम ऑन, गिव अ बिग हैंड एवरीवन, कम ऑन। इस माइंड ब्लोइंग फिल्म का माइंड ब्लोइंग ट्रेलर देखा जिसने इस फिल्म की कहानी के बारे में हमें बहुत कुछ बताया। It gave us an insight about the amazing love story, the way they filmed it, and later on we saw the grooving, and not just the nation, in fact, shirts grooving. And yes, उसके बाद हमने देखा एक बहुत ही melodious और कमाल का romantic track, तो शायद ही recent times में हमने इतना experience नहीं किया है हमारी हिंदी फिल्मों में। And now that we've experienced so much of the film already, the time has finally arrived when I call upon stage the lead actors, the extremely talented and very scintillating Mr. Anupam Chauhan. Zona nahi ho jaye, come on! क्या बात है Anupam? सबसे पहले मुझे बताया this is your first film if I'm not wrong, right? आपकी पहली फिल्म है। Can we have a mic please? एक और mic मिल सकता है यहाँ पर? पहली फिल्म है। इतना सारा मीडिया, फैनफेयर, लॉन्च, this entire glitz, glamour. सबका दिया हुआ है। Very happy. How sweet, ladies and gentlemen. इसलिए जोरदार ताली होनी चाहिए because he's mentioned his family on the first position. How beautiful. एक बार भाई के लिए जोरदार तालियां हो जाए. Come on. For the entire support and the entire love he's provided, Anupam. तो Anupam ये बताओ, इतना grand scale, इतना large scale पर तुम देख रहे हो आज. तुम्हें क्या लगता है? कैसी फीलिंग हो रही है? Are you nervous? Are you excited? इस समय emotions कैसे हैं? क्योंकि कुछ दिनों में रिलीज है तुम्हारी. बहुत ही एक्साइटेड हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है, मिक्स फीलिंग्स आ रही हैं और नर्वस भी हूँ। जैसे आपने कहा सब कुछ एकदम से ये पहली बार सब कुछ सामने आ रहा है। बहुत खुश हूँ और बहुत एक्साइटेड हूँ। सबसे अच्छी बात ये है कि तुमने इतना अटेंशन गाना देगा सुपरस्टार। This itself is a beautiful catchy track. In fact, मुझे बहुत पसंद आया गाना। तो यार तुम मुझे थोड़ा सा वो शर्ट वाला स्टेप करके दिखाओ। I want to learn. मुझे सिखाओ। सिखाना पड़ेगा। You have to teach me because I'm pathetic at dancing and I need to learn from you. Will you teach me? Fantastic. चलो मुझे सिखाओ। How do you do it? एक और बजा सकते हैं क्या सुपरस्टार by any chance? Is it possible? अगर नहीं बजाएगा तो मैं गाऊंगा। ठीक है, तो हम प्ले तो नहीं करेंगे, तुम हमें ऐसे ही बताओ। चलो देखती रहेगी दुनिया, सबका प्यारा, सबका दुलारा, आया देख हीरो आया सुपरस्टार। Fantastic, yeah, fantastic, outstanding, Anupam. Big hand for him again. Come on. So, Aini, how do you feel? Whenever I think about watching myself on this, I get मैं बताना चाहूँ, she is already so self-obsessed that she gets goosebumps after looking at herself on screen. Are you self-obsessed, man? I'm not sure. Do you like yourself? मैं अपनी favorite हूँ kind of things. Not really, but yeah, I like it. Like yourself, beautiful. ये बहुत अच्छी बात है. In fact, मैंने आपसे ये last time भी ये सवाल पूछा था. A debut film is always close to your heart. Right? तो हो गया है दिल पतंगा cameo हो गई, and why did you choose it? Why this script? Because it's a very simple love story, and you can actually connect to it. जैसे एक गाँव की स्टोरी है, जैसे एक मिडिल क्लास का लड़का एक लड़की के पीछे पड़ता है, एक्चुअली पागल हो जाता है प्यार में, और वो लड़की है अपर मिडिल क्लास में, उसके फादर बहुत ही माने
बट भाई सब उसको प्यार नहीं मिलता, कैसे ये स्टोरी होती है। Wonderful, absolutely wonderful. अनुपम ध्यान रखो, ऑलरेडी पागल बोल रही है हम लड़कों को ये। And how was your journey shooting this film? The entire experience working with Anupam, the entire set of people, crew, cast, director. How was it? This shooting schedule was not okay. It was difficult to shoot there in a village where you don't have electricity, you don't have water. Yeah, बहुत मुश्किल था. But see, being an actor, you have some responsibility, you have some commitment. You can't and you have to. You can't ask producer or director what we want to do. Actually, it's down. You can't say ना. You can't ask. So yeah, we got. In fact, which is the best combo one can ever have. A big hand for these lead actors. Come on, Anupam and Mani के लिए जोरदार तालियां हो जाए. Come on. अच्छा, Anupam would like to say something. गाना play होने से पहले. Anupam, go ahead. गाना शूट करने से पहले भाई ने बोला कि बहुत मतलब नर्वस दिख रहा है, तो क्या क्या कैसे कर लेगा। पहली बार ये फर्स्ट लव सॉन्ग था, और तो पूछा कि क्या फील कर रहा है। बोले अभी तो नर्वस हूँ मैं। और जैसे ही टेक हुआ, हम लोग शुरू किया जैसे, तो फिर मैंने इनको देखा, इज़ ब्यूटीफुल। इनके प्यार में पड़ गया मैं। जब प्यार में पड़ जाते हैं तो फिर सब भूल जाते हैं। तो फिर कुछ नहीं देखा मैंने, और वो बहुत ही खूबसूरत हम लोगों ने शूट किया उसके बाद में। तो इस गाने को लेकर बहुत ही एक्साइटेड हूँ मैं। उसमें पूरा अपना दिया हुआ 100%। Director, the captain of the ship, Sachin Chauhan. Big hand everyone, come on! Hey Sachin sir, please take me on the stage. And now without any further ado, may I please call upon stage the producer, someone who's backed the project endlessly, someone who's supported the project and the film amazingly. Please give a big hand for Mr. Anirudh Chauhan. Thank you Anirudh sir for being here.
आपका नाम अनिरुद्ध है, आपका सरनेम श्रीवास्तव है और मेरा नाम हो गया अनिरुद्ध श्रीवास्तव। So thank you for being here, Anubhav, Nani, and all of you. Sachin sir, you look very dashing. बहुत अच्छे लग रहे हो। All right, क्योंकि अब मैंने कहा था कि वो लड़के धूम मचा दी है, जिन्होंने कॉमेडी की दुनिया में बादशाहत हासिल करी है। Ladies and gentlemen, please give a huge round of applause for Mr. Sunil Paul. Come on! Bye bye, center में bye bye bye. Yeah, center लो. सुनील जी फर्स्ट फ्लोर. मुबारक हो. Acha, and along with the entire team here, please call upon stage a very talented, a very popular, someone who's full of potential, the music director, the upcoming music director, Miss Chan Sabrani. Come on! जिन्होंने देते हैं और जल्द से जल्द मुझे फ्री कीजिए, क्योंकि अनीस बंदे ने मुझ पर आरोप लगाया है कि मैं ठीक है हंगामा करता हूँ। ठीक है हंगामा करता हूँ और उसकी ये न्यूज़ देश के सबसे बड़े पत्रकार टाइम्स ऑफ इंडिया में सुभाष के झा ने छाप दी, बगैर ये जाने कि मैंने कभी शराब को हाथ भी नहीं लगाया। तो भाई साहब ऐसे पत्रकार ना बने कि जो सिर्फ एक पक्ष देखते हैं, अमीर का पक्ष देखते गरीब का नहीं। मैं यही कहना चाहता हूँ कि पत्रकार लोग कभी ऐसा कदम ना उठाए कि मेडिकली प्रूव करना बाद में मुश्किल हो जाए। तो बहुत शुक्रिया। और इस फिल्म को दिल मेरा पतंगा हो गया, ये बहुत ही अच्छा टाइटल है और आजकल लंबे टाइटल का क्रेज चल रहा है, तो ये मुझे लगता है कि सुपर हिट हो जाएगी पिक्चर, क्योंकि जोड़ी जो है मैं देख रहा हूँ करीना और शाहिद की यादगारी मुझे बहुत ही हैंडसम, बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। और प्रोड्यूसर जो है हमारे ज़बरदस्त मित्र हैं और इन्होंने जो मेहनत से पैसा लगाया, बाकी फिल्मों में तो लोग कहाँ से पैसा लगाते हैं आपको पता ही है। प्रेस का मतलब होता है दबाना, आपने कई जगहों को दबाया, ठीक है, लेकिन इन्होंने मेहनत से पैसा लगाया है। मेहनत ही इंसान का पैसा। और हमारे डायरेक्टर जो है वो बहुत यंग है, यंगेज में यंगेज हो गई है। जल्दी क्या जो डायरेक्टर बनने की आप एक्टर कर सकते थे, लेकिन डायरेक्टर यंग है तो जाहिर सी बात है फिल्म भी यंग होगी। और आजकल फिल्म वही चलती है जो यंग होती है, बाकी यंग होती है। और हमारे राजेश श्रीवास्तव बहुत ही प्यारा नाम है, राजेश श्रीवास्तव, कितनी मेहनत करनी पड़ती। राजेश श्रीवास्तव जी की फिल्म, ये जो मैगजीन है फिल्म टुडे, तो इसका मतलब भी होता है यूथ, टुडे फिल्म, आज की फिल्म। तो कुल मिलाकर ये सारे के सारे लोग जो है ये आज से जुड़े हैं, यूथ से जुड़े हैं, फिल्म भी यूथ से जुड़ी है, आप सब भी यूथ से जुड़े हैं। तो मुझे लगता है कि जितने भी यूथ जो फिल्म को देखते हैं और रेट करते हैं, उनको ये फिल्म बहुत प्रभावित करेगी, आशंकित करेगी, प्रशासित करेगी, प्रकाशित करेगी। और उनको मुझे लगता है कि एक नया सिनेमा, एक रोमांटिक सिनेमा वैसे बहुत से आएंगे। एक फिल्म आई है सेजल, लेकिन वो जरा गड़बड़ हो गई, लेकिन ये फिल्म चलेगी क्योंकि हैरी मेट सेजल जो है, मुझे लगता है हैरी करो तो इम्तियाज अली को करना चाहिए था, वो हैरी है, हैरिटी है उनको। तो ये फिल्म जो है यूथ को बहुत पसंद आएगी। एक बार जोरदार तालियां पूरी टीम के लिए, गॉड ब्लेस यू ऑल। और मुझे लगता है कि ये साल जो है इनके लिए अवार्ड और रिवॉर्ड से भरा है।
हम अपने आप के क्या अपने बाप के भी नहीं हैं। Fantastic sir. In fact, आपका यहाँ होने से यहाँ पर 4 चांद लग गए. In fact, the kind of humor you generated, the kind of comedy you do, आप veteran हो गए हैं comedy की आप तो. Big hand for Mr. Sunil Pal, everyone. Come on. और हम बिल्कुल भी हेरी लोगों की बात नहीं करेंगे. बिल्कुल भी नहीं करेंगे. And we have Chand ma'am over here. मैं स्टेज पर आ जाऊँ कहीं पर जगह बंद है की? So we have Chand ma'am over here. Sarvani. Ma'am, how was the entire experience directing this track, composing it, and releasing it for this film? Thank you so much. It was a great experience working, and this is my genre. I like electronic disco music. तो मुझे बहुत आसान लगा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा इस पूरी टीम के साथ काम करने में. थैंक यू सो मच चौहान सर. Thank you the entire Chauhan team. Thank you so much. It was a lovely experience working with the entire team and giving this track for this film, which I'm very excited for. Thank you so much. Wonderful, ma'am. In fact, मैंने गाना हम लोगों ने सुना जिसपे ये दोनों कलाकारों ने डांस किया. बहुत ही यूथ सॉन्ग था और ये डिस्को में सुपरहिट हो जाएगा क्योंकि इसका जो रिदम है, मैं खड़े खड़े डांस कर रहा था. आप सोचिए मेरे जैसा नॉन डांसर अगर डांस कर सकता है तो जिसको डांस का शौक है, जो टिकट खरीद के डांस करने डिस्को जाते हैं, सोचिए उनका क्या हाल होगा. तो मुझे लगता है कि वो ये इस प्रोग्राम को सारे म्यूजिक पूरी सीडी को बहुत एंजॉय करेंगे. बहरहाल आप सबको मेरी तरफ से रक्षाबंधन की शुभकामनाएं. रक्षाबंधन के लिए मैंने एक पैरोडी बनाई है, तो सुन लीजिए और अगर पसंद आए तो उसको आगे बढ़ाइए. हालांकि युवाओं को रक्षाबंधन के बारे में थोड़ा समझाना मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी समझा रहा हूं. हैप्पी रक्षाबंधन, हैप्पी रक्षाबंधन, राखी लाई बहन. हैप्पी रक्षाबंधन, राखी लाई बहन. हाजिर है ये कलाई, मजा आ गया. आरती हाथ में, बस दुआ बात में. आरती हाथ में और दुआ बात में. That is called बहन भाई, मजा आ गया. हैप्पी रक्षाबंधन, राखी लाई बहन. हाजिर है ये कलाई, मजा आ गया. जो बहन भाई साल भर लड़ते हैं, लड़ते हैं, वो आज के दिन एक दूसरे की खुशी के लिए झगड़ते हैं. तो ऐसा पावन पर्व रक्षाबंधन आप सबको बहुत मुबारक हो और भगवान करे, ईश्वर करे आप दुनिया में. thank you for being here. May I please have Sachin sir and Anirudh sir on stage. कपिल सर मैं जो कुछ भी काम कर पा रहा हूँ, ये यूथ जो है नए कलाकार से बहुत मुझे इंस्पायर करते हैं. मैं नए कलाकार को अपना गुरु मानता हूं और उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने मिलता है. तो मैं यूथ के साथ जुड़ना चाहता हूँ. मैं भूत नहीं होना चाहता. अनीस बख्शी साहब जो है, मुझे लगता है कि वो जो उनको समझते हैं लोग वो ऐसा नहीं, उनके बिल्कुल विपरीत है. वो बहुत ही अंदर से बहुत छोटे इंसान है, बहुत गरीब इंसान है. मुझे एक शो में बुलाया था, भेजा था एक जगह पे, मेरा पेमेंट भी नहीं दिया. मुझे 9 महीने से रखड़ा रहे हैं और अब उनका स्टेटमेंट आया है बहुत बड़े पत्रकार द्वारा. बात जो है जो टाइम्स ऑफ इंडिया के लिखते हैं,
वो लिखते हैं कि सुनील पाल ने पार्टी में शराब पीकर हंगामा किया है और अनीस बज़मी को वो घेर रहे हैं पब्लिसिटी के लिए। तो सुभाष के साहब आप बहुत बड़े पत्रकार हैं, अनीस बज़मी बहुत बड़े इंसान हैं, लेकिन आपको ये प्रूव करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि मैंने पी के हंगामा किया था। पिछले साल में सारी ज़िंदगी शराब के कतरे को नहीं छुआ, उस पर आप आरोप लगा रहे हैं। और पब्लिसिटी भाई साहब 9-10 महीना टाइम दिया उस आदमी को मैंने कि वो मुझे मेरी बात सुने, पेमेंट दे। 10 महीने तक पेमेंट नहीं दिया, तब जाके वो वीडियो बनाया मैंने, और वीडियो बनाकर सबसे पहले मैंने ये बज़मी को भेजा था, उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया, तब जाके मुझे उसको वायरल करना पड़ा। और हाईलाइट ये है कि मुझे सुभाष के जहाँ से जैसे पत्रकारों से ये पूछना है कि आप चमचागिरी करने के लिए पत्रकार बने हैं क्या? आप जब किसी बड़े आदमी की बात सुनते हैं तो क्या दूसरा पक्ष जानना जरूरी नहीं समझते? आपको मेडिकली प्रूव करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि सुनील पाल शराब पीते कहीं पर भी मिला, क्योंकि आज तक ज़िंदगी में बहुत समय से काम कर रहा हूँ, लेकिन शराब को मैंने आज तक नहीं लगाया। तो ऐसे पत्रकारों से मैं कहना चाहता हूँ, शेम ऑन आपको नहीं करना चाहिए, चमचागिरी है। और अनीस बज़मी साहब आपको तो भगवान ही देख लेगा। आप इतने, मैं मीडिया के सामने आपको कुछ कहना नहीं चाहता या कोई ऐसी शब्द इस्तेमाल नहीं करता जिसकी वजह से मालिक मुझसे नाराज़ हो, लेकिन आप जो कर रहे हैं, माफ़ करना, कोई ऐसी हरकत नहीं कर जिससे मालिक आप खुश हो। आपको अगर हिट फिल्म बनानी है, अच्छा काम करना है, तो नीयत साफ कीजिए, क्योंकि सबका मालिक है जो वो भी सुनता है। आप भी उनके लिए वही वाले सुनील पाल परमात्मा की नज़र में सब जैसे है, तो जैसी नीयत वैसी बरकत। आपकी नीयत में खोट है, आप अपनी नीयत को ठीक कीजिए और मेरा पेमेंट वापस कीजिए, और मुझे पूरे मीडिया के सामने माफ़ी मांगिए कि ताकि किसी भी कलाकार के साथ आप अपने पोस्ट पर बैठ के नहीं समझ सकते। थैंक यू सर। आपके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नाम से ही अनुपम खेर जो एक्टर है, मुझे लगता है कि अनुपम खेर जिस सबसे बड़े एक्टर हुए हैं 35-40 साल से जो काम कर रहे हैं, ऐसे ही इनका करियर भी होगा, ये भी अनुपम होंगे। अनुपम का मतलब होता है कि किसी चीज़ की कमी नहीं है। थैंक यू सो मच। सतेंद्र अबे चिल्ला मत। और क्या
ज़मीनी चीज़ होती है। आगे they are very excited, very excited. मेरी जो मैं टीवी सीरियल कर रही हूँ अभी, एक आता है इसमें स्टार्टिंग पे आता है, तो उसमें मेरी मदर प्ले कर रही है मानसा सागर, वो इतनी एक्साइटेड wanted to come here but commitments नहीं हुए, come here. She is really great. ओके, म्यूजिक के बारे में क्या कहना चाहिए? म्यूजिक इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अलग है। थैंक यू गाइस, थैंक यू। तो बहुत बहुत नाम है। उन्होंने मुझे एक प्रोग्राम में भेजा था, मुझे बोला कि आप एक प्रोग्राम में जाइए काम करने के लिए। मैंने कहा भाई उस दिन तो मेरा एक शो है। अरे सुनील भाई आगे काम करने अपने को बहुत सारे ये है वो है। ठीक है मगर मेरा शो का नुकसान हो जाएगा। बोले सुनील जी आप कितना पेमेंट लेते हैं? मेरा मैं एक अमाउंट लेता हूँ। बोले इतना तो नहीं है कि रुपये में चाहूँगा मैं आपको दे दूँगा। भाई ठीक है। मैं अपना शो छोड़ के सारी चीज़ें इस होप से गया कि अगला खुश हो जाएगा। उसकी फिल्म भी शुरू नहीं हुई थी और अब तक पार्टनर भी है उनका मयूर बारोट, उसकी भी फिल्म शुरू नहीं हुई थी, तो दोनों की फिल्में कम्प्लीट हो गई। गया वहाँ पर शूट करके आया। उसके बाद ये लोग पैसे देने का नाम नहीं ले रहे हैं। फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी। मुझे दुख इस बात को हुआ कि पैसे तो दे नहीं रहे, शूटिंग शुरू कर दी, फ़ोन नहीं उठा रहे, बात नहीं कर रहे। फिर उसके बाद में मैंने मयूर बारोट को संपर्क किया तो मयूर बारोट ने कि सर अभी शूटिंग के लिए गए हैं, बाहर से आएंगे, ये करेंगे, फिर आपको चेक देंगे, फिर पेमेंट देंगे। तो ये करते करते फिल्म की पूरी शूटिंग खत्म हो गई क्योंकि आउट ऑफ इंडिया शूटिंग थी। भी शूटिंग गई थी, ये भी जब अपनी शूटिंग में बारोट साहब जाते थे, फ़ोन नहीं उठाते। जब दोनों यहाँ पर मिले मुझे बॉम्बे में, तो एक दिन मुझे ऑफिस में बुला लिया, मुझे बरिस्ता के ऊपर ऑफिस है। मुझे बोला कि हाँ जी क्या वो पेमेंट की बात कर रहे हैं आप? मैंने कहा था अरे यार घर की बात है, छोड़ दो यार, भूल जाओ, अभी आगे हम काम करेंगे, बहुत है घर की बात है। सर आपने तो तय किया था, मैं इतना नुकसान करके। और दूसरी बात ये सोच के गया था कि आप मुझे काम दोगे, फिल्म में काम दोगे, ये कर दोगे। आपने तो ऐसा वादा किया था कि आगे बहुत काम करना है, तो कहाँ है काम? फिल्म तो कम्प्लीट हो गया आपकी। तो बोले यार अभी बहुत काम करना है, ये है वो, अभी भूल जाओ। फिर मैंने घर पे आके उनको मैसेज किया कि यार मेरा पेमेंट तो कम से कम, बहुत इंसल्ट किया आपने, बहुत मुझे परेशान किया। मैं अपना शो छोड़ के वहाँ गया था, एंटरटेन किया, वहाँ पर परफॉर्म किया, 2-2, 3-3 एंट्री की वहाँ पर। तो मुझे कहने लगे कि तुम्हें पता है तुम किससे बात कर रहे हो? मैं अनीस वज़नी हूँ, द अनीस वज़नी हूँ। इस टाइप की मैसेज मुझे मत करो, तो मुझे नहीं पता मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ। तो मैंने कहा सर मैं तो पुलिस में कंप्लेंट करूँगा, तुम्हें जो करना है करो। उसके बाद फिर मैंने ये वीडियो बना के सबसे पहले उनको भेजा मैंने कि मैं ऐसे वीडियो बना रहा हूँ। उसका भी कोई रिस्पॉन्स नहीं। तो फिर मुझे लगा कि यार ये अपने पोस्ट पे खड़ा होकर इतना बड़ा आदमी मुझे परेशान कर रहा है और हम जैसे कलाकार को परेशान करते ही गई, तो ऐसे में इंसाफ कौन देगा, कैसे देगा? तो कम से कम अपनी बात तो शेयर करो मेरे दोस्तों से। इसलिए मैंने वो वीडियो बनाया और उसको मैंने सोशल मीडिया पे शेयर किया। और उसके बाद पत्रकारों ने जब उनसे पूछा तो वो कहते हैं सुभाष के झा है, टाइम्स ऑफ इंडिया के बहुत बड़े पत्रकार हैं, उन्होंने उनका इंटरव्यू लिया तो कहते हैं कि सुनील पाल पी के टाइट पार्टी में घूम रहा था और पब्लिसिटी के लिए मुझे घेर रहा है। और ये सारी की सारी बातें बिना मुझसे पूछे एक तरफा इंटरव्यू अनीस वज़नी का टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे बड़े मैगजीन में, बड़े न्यूज़पेपर में सुभाष के जैसे रिस्पेक्टेड पत्रकार ने एक तरफा इंटरव्यू छाप दिया कि सुनील पाल पिया हुआ था और पब्लिसिटी के लिए घेर रहा है अनिल वज़नी को। तो भाई साहब 10 महीने का इंतज़ार किया मैंने उस आदमी से पेमेंट मांगने के लिए। 10 महीने लगातार उसके संपर्क में रहा, उसने मुझे पेमेंट नहीं दिया, काम नहीं दिया, प्रॉपर जवाब नहीं दिया, तो सारे अपनी वादे खिलाफी कर गया। तो ये क्या अब जब 10 महीने के बाद जब मैं आवाज़ उठा रहा हूँ तो ये क्या पब्लिसिटी है? उसके बाद आप कहते हो कि मैं शराब पी के घूम रहा था। आज तक आप किसी से भी पूरी दुनिया में पूछ लीजिए, सुनील पाल ना तो शराब पीता है, ना सिगरेट पीता है, ना तंबाकू खाता है, मैं नॉनवेज तक नहीं खाता, खाली अंडा खाता हूँ कभी। तो सुभाष के साहब जहाँ जैसे आदमी को मैं कहता हूँ कि आप पत्रकार हो या चमचागिरी करने के लिए इस लाइन में टाइम्स ऑफ इंडिया में से बड़े पोस्ट पे आप बैठे हो, वहाँ पर आपको अपनी नौकरी का ख्याल नहीं,
करोड़ों दर्शक, करोड़ों पाठक हैं आपके, करोड़ों रीडर्स हैं आपके, ऐसे गलत काम करेंगे तो सुभाष के झा साहब आपको आपके पत्रकारिता पे कौन भरोसा करेगा। पत्रकार मतलब जिसका काम होता है कि वो पक्ष देखे, छोटा बड़ा ना देखे, सच का ध्यान रखे। तो ये दोनों ही लोग जो है मुझे लगता है कि अपने अपने काम से बेईमानी करेंगे।